class. Today in your class I am going to explain you your lesson The Ashes That Made the Tree Blooms, which was written by William Elliott Greaves. Okay. So what are the features, the introduction of the lesson and the summary of the lesson. First of all, what we are going to study in this lesson. First is introduction of the lesson. The lesson is an adopted version of a Japanese story. It depicts that the bond between humans, the bond of love between humans and animals can't be broken even after the death. And there are few people who are selfish and hold their relationship. Means, what is the introduction? It is the lesson is an adopted version. It is adopted version of a Japanese story. It depicts the bond of love between humans and animals. ओके, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम इस लेसन के अंदर? इस लेसन के अंदर ये जापानीज स्टोरी को वर्जन करके ये कहानी बनी है, जिसको विलियम एलियट ग्रीव्स ने लिखा हुआ है। तो जापानीज स्टोरी है और इसके अंदर एक लव रिलेशनशिप दिखाया गया है, एक ह्यूमन बीइंग में, एक मानव में और एक एनिमल में। सो नाउ व्हाट इज द समरी ऑफ लेसन? व्हाट इज द स्टोरी? What is the story of the lesson? In the 19th century, in Japan, there lived an old couple. They had a pet dog and they loved it as their own child. They provided cushions to sleep and was fed lovingly by the couple. The old man was a rice farmer. And the dog accompanied with him to the field, and the old man's kindness, we can see that he also feed the birds with the dogs. So he is a very kind man, and one day the man was going with the dog, and dog took him to a place where he started scratching the earth. Means, इस कहानी में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि एक ओल्ड कपल है, उनका एक पेट डॉग है। वो डॉग को अपने बच्चे से भी ज़्यादा मानते हैं, उसको बहुत आराम से रखते हैं, उसको बेड दिया है, कुशन्स दिए हैं और साथ में उसको बहुत अच्छे से बड़े प्यार से खाना खिलाते हैं। और वो जो ओल्ड मैन है, उसका अपना राइस का एक फील्ड है। तो जब वो अपने खेत पे जाता था तो अपने कुत्ते को साथ लेके जाता। वन डे क्या हुआ कि वो कुत्ता उसको एक ऐसी जगह पे ले गया और वहां पर वो जमीन को खोदने लगा। When the dog started stretching, the dog indicate the man to see something. Then the old man dig the earth and he found a pile of gold. Now the old man and his wife become rich. They purchase a land and they give feast to their friends and help the poor relatives also. होता क्या है कि जब वो उस जमीन को खोदता है तो वहां पर उसको सोने का ढेर मिलता है और वो उस ढेर से क्या करता है, एक जमीन खरीद लेता है और जमीन खरीदने के बाद वो एक फीस्ट अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को बुलाता है, उनको बढ़िया दावत देता है, जो मजबूरी में होते हैं उनकी वो हेल्प भी करता है। सो अब सिचुएशंस हमेशा एक जैसी तो नहीं होती, सब लोग अच्छे तो नहीं होते। Their neighbor was very insensitive and he tried to deceive the dog, but he became unsuccessful. So he
place, and the dog also befooled them and start scratching the earth. When the neighbor dig the earth, they found a dead kitten was buried there. मतलब जो पड़ोसी है वो बहुत ही इंसेंसिटिव है, उसको किसी पे दया नहीं आती, और वो क्या करता है कि वो जो उनका जो डॉग है उस डॉग को कई बार बहलाने फुसलाकर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो असफल हो जाता है। लेकिन एक बार वो फोर्सफुली उस डॉग को साथ में ले जाते हैं, और ले जाने के बाद, और वो डॉग बहुत समझदार होता है, वो भी झूठ मार उनको बेवकूफ़ बनाता है, जमीन को स्क्रैच करता है, और जब वो नेबर उस जमीन को खोदता है, वहाँ पर उसको क्या मिलता है, वहाँ पर एक मरी हुई बिल्ली को वहाँ दफनाया गया था, तो वो वहाँ पर उसको मिलता है। सो व्हाट हैपेंड द नेक्स्ट, एंग्रीली द नेबर killed the dog, and the wife and his husband both buried the dog in a place and made a heap of earth over it. वो दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर उस कुत्ते को मार देते हैं और फिर उसको एक जमीन में गाड़ देते हैं, वहाँ पर एक ऐसा ऊंचा सा ढेर बना देते हैं। When his master was very sad when he came to know that his dog was murdered. He set a bamboo tube on its grave and laid a cup of warm water and food as they used to feed it. क्या करते हैं वो, जब वो मालिक को पता लगता है कि उसके कुत्ते को मार दिया गया है तो वो बहुत दुखी होता है, और वो जहाँ उस जगह पे जाता है जहाँ पर उसको दफनाया गया था, फिर वहाँ पर वो एक पेड़ लगा देता है, और पेड़ लगाने के बाद वहाँ पर वो स्थान बनाकर गर्म पानी और खाना, जैसे वो उसको पहले प्यार से खिलाते थे, वो उसकी कब्र पे वो वहाँ रख देते हैं। One day when the old man was sleeping in a deep sleep, he saw a dream. In his dream, the dog asked him to cut the tree near his grave and wanted him to make a mortar for his rice pastry and a meal for bean sauce. अब एक दिन क्या होता है, उस जो मालिक रहता है उसको रात में वो कुत्ता सपने में आता है, और सपने में आके बोलता है कि मेरी कब्र के पास जो तुमने पेड़ को लगाया है उस पेड़ को तुम काटो, और उस पेड़ को काट के तुम एक मॉर्टर अपनी राइस पेस्ट्री के लिए बनाओ, और साथ में तुम एक बीन सॉस बनाने के लिए मील स्टार्ट करो। द ओल्ड मैन फॉलोड द डिजायर ऑफ द डॉग एंड इन अ न्यू ईयर्स टाइम he decided to make the pastry. When the rice was boiled, it was poured into the mortar, and the old man lifted the hammer to pound into the dough. To his surprise, into the dough, the gold coins started appear. होता क्या है कि वो जो मालिक होता है वो क्या करता है कि उसको जब सपने में दिखता है वो बोलता है कि नहीं ठीक है तुम मोटर लगाओ, तुम उसका सॉस का मील डालो, तो वो अपने कुत्ते की इच्छा का पालन करता है, और पालन करने के बाद वो जैसे न्यू ईयर का सीजन आता है तो वो डिसाइड करता है कि नहीं ठीक है मैं अब अपना राइस पेस्ट्री बनाना शुरू करूँगा। और वो क्या करता है फिर जैसे ही राइस बॉयल होता है तो उसको जब उस मॉर्टर में पोर करता है, उसके बाद जब वो हैमर चलाने के लिए जैसे उसको डव बनाने के लिए तैयार करता है तो देखता है कि उसके अंदर से गोल्ड किडनीज निकलती है, सोने की मोहरें निकलती हैं। एंड जस्ट द सेम थिंग हैपेंड विद हिज वाइफ व्हेन शी poured the beans in the hand mill. The gold started dripping like a rain. और जब उसकी वाइफ जो है वो जब बीन सॉस बनाने के लिए जब उसको पोर्ड करती है तो उस जो पोर्ड करने के बाद जैसे मशीन के अंदर से कैसे निकलता है, जैसे बारिश की बूंदें गिरती हैं वैसे सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। द जेलस नेबर वर वॉचिंग एवरीथिंग, सो दे कैम टू बोरो द मोटर एंड द मील। और वो जो उसके जो नेबर थे वो नेबर ये सब देखते हैं, और एक दिन वो उनसे वो मील और मोटर को बोरो करने के लिए आते हैं। and they also try to make the pastry, but their pastry turn into a mass of worms. वो जब पेस्ट्री बनाने की कोशिश करते हैं तो उनकी जो पेस्ट्री होती है वो worms मतलब
कीड़े मकोड़े जैसा कुछ ऐसा बन जाता है, तो वो उसमें बदल जाती है। ही वॉज वेरी वेरी फ्यूरियस एंड he cut the meat into pieces and used it for the firework। वो क्या करते हैं, वो जो मोटर और वो जो सारी चीज़ें वो लेकर आता है, उन सारी चीज़ों को वो तोड़ देते हैं और तोड़ के उसको फिर अपनी फायर प्लेस क्या होता है, फायर प्लेस है कम्युनिटी। सर्दियों में विदेशों के अंदर जब बहुत ठंड होती है तो दे यूज द फायर प्लेस टू हॉट देयर बॉडीज, अपनी शरीर को गर्म करने के लिए वो उस फायर प्लेस का यूज करते हैं ताकि वो गर्म रह सके। तो वो उसको अपने जलाने के काम के अंदर वो उसको ले लेता है। What happened then? The generous man again dreamed, and the spirit of the dog informed him about how the meal had been burnt. He then asked to his master that collect the ash of the meal wood and sprinkled it over the withered tree near his grave। वो बोलता है क्या कि आप क्या करो, ठीक है, वो पूरा सपने में उसको आता है, सपने में उसको बताता है कि जो वो मील थी जो तुमने वो लगाई थी और जो पेस्ट्री तुम्हारी जो मोटर थी उसको पड़ोसी ने कैसे जलाया। फिर वो उसको ये भी बताता है कि ठीक है, जो जल गया है तो तुम जले हुए का जो ऐश है, जो राख होती है, उस राख को तुम ले आना, और जो सूखे हुए पेड़, विदर्ड मीन्स सूखे हुए, तो जो सूखे हुए पेड़ है उसको स्प्रिंकल, तो तुम उस क्या करना, सूखे हुए पेड़ के ऊपर उसको राख को स्प्रिंक कर देना, उसको पूरा स्प्रिंकल कर देना। उसको पूरा ऐसा बोलता है। तो ठीक है, द ओल्ड मैन वेंट टू द नेबर्स हाउस एंड ही सा दैट दे आर सिटिंग नियर द फायरप्लेस। he very resentfully he was allowed to take the bucket of ashes। वो गया, उसने उससे जाके बोला कि नहीं, मुझे देख लेता है कि ठीक है इसने मेरी मोटर को जलाया, लेकिन he doesn't speak anymore, वो उसको कुछ नहीं बोलता, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। दिस इज द मॉडेस्टी ऑफ हिज कैरेक्टर, कि कितना विनम्र है वो, सब कुछ जानने के बाद भी कुछ नहीं बोलता। फिर वो उसको बोलता है कि नहीं, मुझे इसकी थोड़ी सी राख चाहिए, एंड द नेबर अलाउड हिम टू टेक अ बकेट ऑफ एशेस। वो उसको एक बाल्टी ऐश ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। देन व्हाट हैपेंड, he went to the near the withered trees and sprinkled all the ashes in the withered trees। वो withered tree पास जाता है और जो भी ऐश होती है, जो भी राख होती है, उसको सूखे हुए पेड़ों के ऊपर वो उसको छिड़क देता है। What happened? Suddenly the fragrance of the blossoms spread all over the village। क्या होता है कि वो जैसे ही सूखे हुए पेड़ों के ऊपर जब वो ऐश को छिड़कता है तो वो पूरे जो पेड़ हैं वो पूरे फूलों से खिल जाते हैं और उसकी जो खुशबू होती है वो पूरे गांव के अंदर फैल जाती है। एट दैट टाइम द लैंडलॉर्ड ऑफ द विलेज वाज पासिंग, वो वहीं से गुजर रहा होता है, एंड ही स्टॉप टू सी एंड फील द ब्लॉसम्स एंड द फ्रेग्रेंस। वो खिले हुए फूलों को देखने के लिए, फूलों को देखने के लिए, उसकी खुशबू को महसूस करने के लिए वो वहाँ पर रुकता है। एंड ही वाज वेरी वंडर्ड दैट इन दिस सीजन he look such a beautiful flowers and he smell a very good fragrance। At that time the neighbors also saw all the things and he also copied him। He went to the fireplace, collect the ashes, and he also want to sprinkle the ashes on the withered tree। वो भी यही करना चाहता था। उसके नेबर ने सब देखा कि क्या हुआ, उसने सोचा मैं भी ऐसे ही करूँगा। ऑन द अदर हैंड द लैंडलॉर्ड appreciate the kind old man and he also give him a lots of presents and also invite him to his home। जो लैंडलॉर्ड होता है वो उसको बहुत सारे प्रेजेंट्स देता है, जो काइंड ओल्ड मैन होता है, और प्रेजेंट देने के बाद इसके अलावा वो उसको अपने घर भी बुलाता है। देन इन द कॉन्ट्री द जेलस नेबर, जो जलता था वो नेबर, ही ऑल्सो ट्राइड द सेम सिचुएशन बट ही वेट अंटिल द लैंडलॉर्ड नॉट पास ऑन दैट वे। वो तब तक इंतजार करता है जब तक कि जो लैंडलॉर्ड होता है वो वहाँ से नहीं गुजर जाता। एंड व्हेन हिज ट्रेन वाज पासिंग एट दैट टाइम ही स्प्रिंकल्ड द विदर्ड ऑन अ चेरी ट्री बट द ट्री इज नॉट चेंज। वो क्या करता है, जैसे ही वो लैंडलॉर्ड उसके नीचे से निकलने वाला होता है तो वो पेड़ के ऊपर जब उस ऐश को स्प्रिंकल करता है, उसको छिड़कता है, तो वो जो
पेड़ होता है वो चेंज नहीं होता है. And the ashes blew in the eyes and the nose of the landlord and in the eyes of the person who escorted him. तो जो एशेज होती हैं वो एशेज वो लैंडलॉर्ड की आंखों में और जो उसको स्कॉट कर रहा होता है उसकी आंखों में चली जाती हैं. So what happened the next? The escort dragged the jealous man from the tree and he also scolded him. They give punishment to him. So this is the story that what we learn from this story. We learn that we cannot pay the kindness and the generosity of while it is a man or while it is a animal. चाहे वो व्यक्ति हो या पशु हो या जानवर कोई भी हो, हम किसी की दया का या किसी की भी के अच्छे काम का हम उसको बदला नहीं दे सकते. On the other hand, if we have jealous in our heart, अगर हम अपने मन में किसी के लिए jealous रखेंगे, then someday the God will also punish us. भगवान हमें कभी न कभी उसकी सजा जरूर देंगे. So this is the story of this lesson. Solve every question of this chapter, and if you have any problem, you can ask me. Till then, goodbye.